મિત્રો નમસ્તે એન્ડ જય હિન્દ. જય હિન્દ. વેરી ગુડ. રોહિતભાઈ, તમે સભાના પ્રારંભે કશું કહેવા ઈચ્છો છો બધા ભાઈઓ બહેનોને? જય હિન્દ. જય હિન્દ. રોહિતભાઈ, સુરેશભાઈ, વેબિનારના આયોજક વિનોદભાઈ માંડવિયા અથવા રોહિતભાઈ કશું કહેવું છે અથવા હું સીધું શરૂ કરું? તમારો રોહિતભાઈ ઓડિયો બંધ છે. વિનોદભાઈ, હા બોલો. તમે સીધું જ ચાલુ કરજો, કહેવાનું કઈ નથી. શું કહેવાનું છે કે આપણે આપણું આગલું પ્લાનિંગ શું છે એ આપણે કેવી રીતે વેબિનારમાં નવા મિત્રો છે એની સાથે કેવી રીતે કનેક્શન કરી શકીએ અને આગળ આખી જીવન વિદ્યાની વાત કેવી રીતે ચલાવી શકીએ. એમાં અમારા ગ્રુપમાં સૌ પોતપોતાનો મેસેજ મૂકશે, પોતપોતાના સમય, એમ કરીને આપણે સમય 2-4 દિવસમાં નક્કી કરીશું. ઓકે, સરસ. તો સૌથી પહેલા તો રોહિતભાઈ અને વિનુભાઈનો હું આભારી છું કે એક સામટા લગભગ 600-700 શિક્ષકો સુધી આ સંદેશો ગયો. પણ મને લાગે છે કે રવિવારનો મૂડ છે અને કેટલાક લોકોને એવું પણ હશે કે વેબિનારમાં જોડાવું કઈ રીતે. ઘણા બહુ ટેકનોલોજીથી એટલા બધા પરિચિત નથી હોતા, એટલે આપણા 50 મિત્રો જોડાયા છો. જેટલા પણ મિત્રો જોડાયા છે, સૌથી પહેલાં મારી ખુશી વ્યક્ત કરી દઉં કે એક શિક્ષકને બીજા શિક્ષકો સાથે એને જે ખુશી મળી હોય વહેંચવાની કેટલી ખુશી હોય. આમે શિક્ષક પોતાની ખુશી બધે વહેંચતા હોય, પણ બીજા શિક્ષકો સાથે વહેંચવાની જે ખુશી છે એની ખૂબી એ છે કે એ બેવડાવવાની છે, મલ્ટીપ્લાય થવાની છે. તમે જે સંદેશો મારી પાસેથી લેશો અને એ પછી અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી અને સરવાળે નાગરિકો સુધી લોકોના જોયું? ઓકે, જે લોકોને હું પ્રશ્ન વખતે કહું ત્યારે તમે લોકો ઓડિયો ઓન કરજો, બાકી બધું ઓડિયો ઓફ રાખજો. રોહિતભાઈ ત્યાં ઓડિયો ચાલુ છે. ઓકે, રોહિતભાઈ હું તમારી રાહમાં છું. કોઈ અગવડ ના હોય તો આપણે શરૂ કરીએ. તમારી દીકરી કંઈક મથી રહી છે. ઓકે, તો આપણે શરૂ કરીએ. રોહિતભાઈ આઈ થિંક નીકળી ગયા છે. આજે ટેકનિકલ થોડી ક્ષતિઓ થાય અને તમે કોઈ પણ સંજોગોમાં નીકળી જાઓ તો ફરી પાછા રીજોઈન થઈ શકશો, કારણ કે આપણી સાથે એડમિન છે જે બધી વ્યવસ્થા કરશે. ભાઈ ઈશાનને વિનંતી છે, કોઈ પણ મિત્રો વચ્ચેથી પણ જોડાવા ઈચ્છે તો એમને લઈ લેજો. મિત્રો, આ સૂચના એટલા માટે આપવી પડે છે કે મારો હમણાં જ એક 4 થી 5.5 વેબિનાર પૂરો થયો. અમે એવી શિસ્ત રાખીએ છીએ કે બધા 3:50 જોડાય અને બરાબર 4 થી 5:30 સુધી સાથે રહે. એટલે આજે નવું છે, કેટલાક લોકો પાછળથી પણ જોડાશે એવું મને લાગે છે. તો દોસ્તો, જીવન વિદ્યા શું છે? આ પહેલો એજન્ડા છે. બીજો એજન્ડા છે જીવન વિદ્યાને શિક્ષકોને શું લેવા દેવા, અને ત્રીજો એજન્ડા છે જીવન વિદ્યાનો શિક્ષણની અંદર એવો તે કેવો વિનિયોગ કરીએ કે શિક્ષકનું પોતાનું સ્થાન વધારે સન્માનભેર થાય. હવે અહીંયા મારા પૂર્વ વેબિનારમાંથી કેટલાક બહેનો અને ભાઈઓ પણ છે, તો એ લોકોને કહી દઉં કે પ્રત્યેક વાલી એ શિક્ષક જ છે. આપણે ત્યાં પ્રાચીન સમયથી સંસ્કારની પ્રક્રિયાની જવાબદારી માતા પિતા ઉપર હતી જ. પછી આપણે બધું સ્કૂલ ઉપર સબલેટ કરવા માંડ્યા. એટલે તમે અહીંયા જોડાયા છો તો શિક્ષક તરીકે જ હું તમને સંબોધી રહ્યો છું, અને તમે પણ પોતાને શિક્ષક માનીને અહીંયાથી જે પણ હું કહું એ ગ્રહણ કરજો. તો સૌથી પહેલો મુદ્દો લઈએ, જીવન વિદ્યા શું છે? હવે આપણે બધા શિક્ષકોને ખ્યાલ છે કે કેટલીક વસ્તુ શું છે સમજાવવા માટે શું નથી ને એની પણ વાત કરવી પડે, તો ઘણીવાર ગૂંચવાડા ઓછા થઈ જાય. તો આપણે સૌથી પહેલા શું નથી એની વાત કરીએ. એક તો જીવન વિદ્યા શબ્દ એવો છે ને, સંસ્કૃત અથવા શુદ્ધ હિન્દી, તો તરત જ એમ થાય કે કોઈ ધર્મ સંપ્રદાયની વાત હશે. તો સૌથી પહેલા કહી દઉં કે આ કોઈ સંપ્રદાયની વાત નથી. પ્રત્યેક માનવની અને પ્રત્યેક માનવના ધર્મની, પૃથ્વીના 750 કરોડ માનવના ધર્મની વાત જરૂર છે, પણ કોઈ સંપ્રદાયની વાત નથી. હવે જ્યારે હું ધર્મ કહું છું
ત્યારે કોઈ પ્રકારના કર્મ કાંડ, પૂજા પાઠ, માળા જાપ, ધ્યાન, આસન, પ્રાણાયામ આવું કશું જ જીવન વિદ્યાની અંદર નથી. જીવન વિદ્યાની અંદર કોઈ ડોગમા પ્રેજ્યુડાઇઝ નથી, કોઈ દેવી દેવતા નથી, એને અનુરૂપ કોઈ પૂજાપાઠ નથી, કોઈ વ્રત નિયમ ઉપવાસ પછીથી કરવાના નથી. હું માનું છું શબ્દ સાથે જે ઓટોમેટિક જે અર્થની છાયા આવે છે એ હવે નીકળી ગઈ હશે. તો જીવન વિદ્યામાં પહેલો શબ્દ છે જીવન, તો કંઈક જિંદગીની વાત છે. અને તમે બધા વિદ્યામાંથી આવતા છો. ક્લાસરૂમમાં જેમ 9 થી 5 શાળા ચાલે કે કોલેજ ચાલે, બિલકુલ એક્ઝેક્ટલી એવી જ રીતે આ પણ 9 થી 5 ચાલતો એક ક્લાસરૂમ જ છે. હાલાકી જીવન વિદ્યા શિબિર ચલાવનાર પ્રબોધકની પોતાની ઉપર પણ ઘણું જાય છે. જેમ કે હું જીવન વિદ્યા શિબિર ચલાવું છું તો મારો શિબિર 9 વાગે શરૂ થાય. બપોરે હું એમ કહું કે બધાને 1 કલાકની નહીં, 2 કલાકની રિસેસ લો અને આરામથી વામકુક્ષી કરો, ઉઠીને તાજા થઈને આવો. આપણે સાંજનું સત્ર 6 સાડા 6 સુધી ચલાવશું. એટલે 9 થી 5 ને બદલે 6-7 સુધીનું સત્ર ચાલે. ત્યાર પછી બધા ડિનર લે અને પછી હું એમને પિક્ચર બતાવું. એટલે મારા જીવન વિદ્યા શિબિરમાં વિવિધ પ્રકારના વિડીયો ક્લિપ્સ, ઓડિયો, ગ્રુપ ડિસ્કશન આવું બધું હોય છે. પણ દરેક પ્રબોધક, દરેક જીવન વિદ્યાના જે પણ શિક્ષક છે એ પોતાની જે રીતે શૈલી અનુકૂળ લાગે એ રીતે અને પોતાના વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે શિબિરાર્થીઓને સુપાચ્ય થાય એવી રીતે એ શૈલીમાં શિબિરો ચલાવાય છે. આ શિબિર આખા દેશમાં ચાલે છે અને દુનિયામાં પણ કમસે કમ યુરોપ અને કેનેડા અને અમેરિકા આટલી જગ્યાએ તો ચાલે છે. હવે શું છે જીવન વિદ્યા શિબિર શું છે? તો મેં 2 શબ્દોનો અર્થ ઘટન તો કરાવી દીધું. બધી જિંદગીની બાબત છે એટલે જિંદગીનું કોઈ વસ્તુ છૂટી ના જાય. અણુ પરમાણુથી લઈને આકાશગંગા સુધીના વિષયો એમાં આવરી લેવાય છે. તો કોઈને એમ થાય કે શું ત્યાં જ્યોગ્રાફી ભણાવવામાં આવે છે? ના, ત્યાં જ્યોગ્રાફી જે નિયમ ઉપર ઊભી છે એ નિયમો ભણાવવામાં આવે છે. હવે ગુરુત્વાકર્ષણનો એક નિયમ તમે સમજી ગયા તો પછી આ બધું સૌરમંડળ અને આકાશગંગાઓમાં બધું ગોળ ગોળ કેમ ફરી રહ્યું છે એ તમને સમજવું સરળ થઈ પડે છે એના જેવું. તો મિત્રો, સમગ્ર અસ્તિત્વને આવરી લેવામાં આવે છે એટલે માનવ જીવનના બધા જ પાસાઓ એની અંદર આવી છે. અને માનવ જીવનના પાસાઓમાં સૌથી મહત્વનું પાસું છે સંબંધ, રિલેશનશિપ. મિત્રો, આપણે ફ્રીજ બગડી જાય તો દુઃખી નથી થતા, પણ પત્ની સાથેનો સંબંધ બગડી જાય કે પુત્ર સાથેનો સંવાદની અંદર કટુતા આવી જાય તો આપણને એનું દુઃખ બહુ લાંબુ ચાલે છે. કોઈ એક શબ્દ આપણને વર્ષો સુધી પીડા કરે એવું બને કે કોઈ એક કન્ફ્લિક્ટની ઘટના આપણા મન ઉપર ભાર એવો કરી દે કે આપણને રાત્રે ઊંઘ પણ ના આવે. મિત્રો, બધાને ઇન્વાઇટ કરું છું વિચારવા માટે. જેને તમે પોતાના માનો છો લગભગ એનાથી જ વધારે દુઃખી થાઓ છો. તો આ જેટલા પોતાના છે એ બધા ભેગા શું કામ કર્યા? સુખી થવા કે દુઃખી થવા? એક પ્રશ્નનો જવાબ મને નથી જોઈતો પણ તમને અંદર મળી રહ્યો છે કે જે લગ્ન કરીએ છીએ તો સુખી થવા લગ્ન કરીએ છીએ, બાળક પેદા કરીએ છીએ તો સુખી થવા, ભણાવીએ છીએ સુખી થવા. એક બેન ફરિયાદ કરતા કે મારા દીકરાને સમજાવો ને અમેરિકાથી પાછો આવતો રહે. મેં કીધું તમે મને કેમ પાત્ર સમજો છો? તો કે મેં એવું તમારા વિશે સાંભળ્યું કે તમે પાછા આવતા રહ્યા છો એટલે તમે એને સમજાવી શકો. મેં કીધું એને મોકલ્યો તો કોણે? તો કે અમે. મેં કીધું એની કથા કહો. ખૂબ નાનપણથી પ્રેરણા આપી કે આપણા દેશમાં તો ભણવામાં કંઈ ભલીવાર નથી, ભણવાનું તો અમેરિકામાં જ છે. બેંકમાંથી લોન લીધી, ભણાવ્યો, પછી કે તને ત્યાં નોકરીનો કંઈ મેળ પડે એવો છે? આપણે ખૂબ બધા પૈસાની લોન લીધી છે એટલે પેલો કે આ નોકરી મળે છે તો લઈ લે બેટા નોકરી. નોકરી લઈ લીધી, ડોલરો મોકલ્યા, લોન ભરપાઈ થઈ ગઈ. હવે મા બાપને ઝંખના છે કે મારો દીકરો પાછો આવતો રહે. એકનો એક દીકરો છે પણ હવે પેલાને પાછું આવવું નથી કારણ કે હવે એને ગોઠી ગયું છે. સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં અનુકૂળ થઈ ગયું છે અને એટલું બધું અનુકૂળ થઈ ગયું છે કે હવે એને ભારતમાં ગમતું નથી. એટલે વર્ષે એકવાર આવે. માતા પિતા ક્રમશઃ ઘરડા થતા ચાલ્યા છે. એ દીકરાએ બોલાવ્યા અમેરિકા. 15 દિવસમાં કંટાળી ગયા કારણ કે સોનાનું પાંજરું છે. બહાર તો બરફના ઢગલા પડ્યા છે. ન્યુયોર્ક વિસ્તારમાં રહે છે.
શું કરે? ઉનાળાના થોડા દિવસો સારા હોય, પણ બંને જણા નોકરી કરે, બાળકોને આયાઓ રાખે. આ દાદા આવે તો 15 દિવસ કે આયાને થોડી નોકરીમાંથી કાઢી મુકાય. એટલે તમારે વાર્તા કેવી હોય ત્યારે કહેજો, પણ આયા આવે ત્યારે તમારે વચ્ચે કંઈ કરવાનું નથી. માતા પિતા દ્વારા આવી ક્ષતિઓ થાય છે અને પછી રોવાય છે. મિત્રો, પીડા બધી સંબંધોની છે, પીડા વસ્તુઓની હોતી જ નથી. તો જીવન વિદ્યા શું છે? ફરી પાછા વિષય ઉપર આવી જઈએ. જીવન વિદ્યા આપણા તમામે તમામ સંબંધોને આવરી લેતું વિજ્ઞાન છે. અને મેં કહ્યું વિજ્ઞાન છે, ઇટ્સ એ સાયન્સ. એટલે સાયન્સ તો બધે એપ્લિકેબલ હોય. પ્રકાશ સંશ્લેષણનો નિયમ ભારતની નિશાળમાં શીખવાય અને યુરોપની નિશાળમાં પણ શીખવાય અને સેમ જ શીખવાય. રાઈટ? પ્રશાંતભાઈને હમણાં હું કહું તો તરત આખો નિયમ ફળફળાટ સંભળાવી દેશે. લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પોતાના પર્ણમાં રહેલ હરિતદ્રવ્યની મદદથી જે ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા કરે છે તેને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કહે છે. આ ક્રિયામાં મૂળેથી શોષેલા પાણી અને પોષક દ્રવ્યોની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. અંગારવાયુનું શોષણ થવાથી પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દરમિયાન પ્રાણવાયુનું નિષ્કાશન થાય છે. પછી ઘણી બધી વિગતો ઉમેરી શકાય. હવે મને કેમ આ નિયમ યાદ રહ્યો આટલી બધી ઉંમરે? કારણ કે મને એવા શિક્ષક મળ્યા હતા જેમણે પ્રકાશ સંશ્લેષણનો નિયમ ક્લાસમાં પાટિયા ઉપર નહોતો સમજાવ્યો. પ્રકાશ સંશ્લેષણનો નિયમ વખતે શિક્ષકે કીધું, ચલો છોકરાઓ બધા બહાર. એટલે આખો ક્લાસ, અમારો તો બહુ મોટો ક્લાસ હતો, 60નો ક્લાસ, ઉડું બહાર નીકળી ગયા. આમે બહાર નીકળવાની નિશાળના દિવસોમાં બહુ મજા પડે. હાશ છૂટ્યા, કારણ કે ઘણા બધા શિક્ષકો ત્રાસ કરતા હોય. જો કે આ સભામાં એવા કોઈ નહીં હોય, પણ છૂટ્યા અને પછી ઝાડ પાસે લઈ ગયા અને સાવ સાદા સાદા પ્રશ્નો શિક્ષકે પૂછ્યા. પાંદડાનો રંગ લીલો કેમ છે? એ તો ખબર જ ના હોય. એમાંથી એમણે ક્લોરોફિલ સમજાવ્યું. પછી આ ઝાડ અહીંયા ઊભું છે તો જમીનની નીચે શું હશે? કોઈ કે ક્યારેક તો મૂળ જોયા જ હોય. આખી વસ્તુ સમજાવી. મિત્રો, અત્યારે વેબિનારની મર્યાદા છે. હું ક્યારેક નિશાળમાં જાઉં છું તો હું પ્રકાશ સંશ્લેષણનો નિયમ આવી રીતે સમજાવું છું. કદાચ તમને મારા 2 હાથ દેખાતા હશે કે ભાઈ આ પાંદડા છે અને હું સૂર્યપ્રકાશની સામે ઊભો છું. આખી જિંદગી યાદ રહી જાય. તો એ શિક્ષકને હું અત્યારે પણ મનોમન વંદન કરું છું કે એવા શિક્ષકો જિંદગીમાં આવ્યા કે મારા જીવનનો હિસ્સો બની ગયા. ડૉક્ટર કલામ સાહેબે એમના પુસ્તકમાં ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડમાં લખ્યું છે કે હે ભારતના નાગરિકો, આવો, હું એવો કૂવો છું જેની અંદર બધા શિક્ષકોએ પોતાનું પાણી રેડ્યું છે. હવે તમારે જેટલું સિંચવું હોય એટલું સિંચી લો, તમારે જેટલું જોઈએ એટલું પાણી લઈ લો. તો દોસ્તો, જીવન વિદ્યા અસ્તિત્વને એ જેવું છે તેવું સમજવાનું વિજ્ઞાન છે. ઇટ્સ એ સાયન્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ રિયાલિટી. હવે હું તમને ઉદાહરણથી સમજાવું. આપણી સામે કોઈ પાણીનો ગ્લાસ ધરે તો આપણે પાણીને કેવી રીતે જોઈએ? તરસ લાગી હોય તો આપણા માટે ખોરાક છે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈને પાણીમાંથી કોઈ કેમિકલ બનાવવાનું તો એના માટે રો મટીરિયલ છે. બિસ્લરી જેવી કોઈ કંપની જે વોટર બોટલના બિઝનેસમાં છે એના માટે બહુ સારું રો મટીરિયલ, સીધું પેક કરીને વેચવાનું, બહુ ઝાઝા શ્રમ વગર. તો પાણી બધા પોતપોતાના સંદર્ભે જોઈ રહ્યા છે. આને કહેવાય સંવેદના મૂલક સમજણ. કે ભાઈ મને તરસ લાગી છે, મારી તરસની સંવેદનામાંથી હું પાણીને જોઉં છું. મને પૈસાની ભૂખ છે તો હું ઇન્ડસ્ટ્રીના ફલકમાંથી પાણીને જોઉં છું. પણ એક્ઝિસ્ટેન્શિયલી, અસ્તિત્વની રીતે પાણી શું છે? તો પાણી હાઇડ્રોજન નામનો એક સળગી ઉઠે એવો વાયુ અને ઓક્સિજન નામનો સળગાવનારો વાયુ, એ બંનેનું મિશ્રણ છે અને આખા સંસારની આગ અને તરસ બુજાવી શકે એવું પ્રવાહી છે. આ થયું એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ રિયાલિટીનું વિજ્ઞાન. આવી સમજણ પડે તો એવી પણ સમજણ પડે કે પાણી ઉપર સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ નિર્ભર છે. પછી કહેવું ના પડે કે પાણી બગાડશો નહીં. આપણે આઝાદ થયા ત્યારથી કેટલા ઉપદેશો આપીએ છીએ પણ કશું થતું નથી. કારણ કે ઉપદેશો ખાલી સાંભળવામાં આવે છે, એનો જીવન સાથે અનુબંધ હોતો નથી. અને ઘણીવાર તો એવું બને છે કે મોટે ભાગે ઉપદેશક પોતે જ એ પ્રમાણે જીવતો નથી, એટલે ખાલી ઠાલા શબ્દો રહી જાય છે.
તો દોસ્તો, જીવન વિદ્યા શું છે એને મેં 4 શબ્દોમાં અભિવ્યક્ત કર્યું છે. તમને મને સાંભળવાની પણ મજા પડે અને શબ્દો પર ધ્યાન રહે એટલે હું સ્લાઇડ મૂકું છું. જે લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ લોકોએ ચહેરા એકદમ ટેન્શન વાળા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે મેં કોઈ ગુનો કર્યો નથી. અને તમે ને હું, આપણે શિક્ષકો ભેગા થઈએ તો પાર્ટી જેવો મૂડ હોવો જોઈએ. એમાં એકદમ આટલું બધું ટેન્શન લઈ લેવાની શું જરૂર? અને જે લોકોએ મને આમંત્રણ આપ્યું છે એ લોકો પ્રબુદ્ધ લોકો છે. એમણે બહુ વિચારીને જ મને બોલાવ્યો હશે કે આ તોફાની માણસને બોલાવાય કે નહીં. તો આપણે 3 વસ્તુ જોઈ. ક્રિયાકાંડ નથી, સાંપ્રદાયિક બાબતો નથી, પૂજાપાઠ નથી, ચિહ્ન દેવતા નથી. તો છે શું? તો 4 શબ્દો. પહેલું તો પ્રસ્તાવ છે. જીવન વિદ્યાની અંદર જુદા જુદા પ્રસ્તાવ મૂકું છું હું શિબિર ચલાવતી વેળાએ, અને કોઈ પણ પ્રસ્તાવ તમારે સ્વીકારી લેવાનો નથી હોતો. પ્રપોઝિશન છે એટલે એને તપાસવાનું હોય છે. હવે જો પ્રપોઝ કરવું અને શીખવવું એ બંને બિલકુલ ફરક છે. શીખવવાના આખા પ્રયત્નમાં સામેવાળાને સમજણ નહીં પડે એ મુખ્ય બાબત છે. જ્યારે પ્રસ્તાવમાં મુખ્ય બાબત છે કે સામેવાળો સમજવા સક્ષમ છે અને એ સમજશે, મારો એની પર વિશ્વાસ છે, એટલે હું પ્રસ્તાવ મૂકું. તો મિત્રો, કાલે મારા વેબિનારમાં 8 વર્ષની દીકરી આવી હતી. હવે એ તો રિલેશનશીપનો વેબિનાર છે, પણ એ પહેલવેલી મારી સામે આવી ત્યારે 5 વર્ષની હતી. જીવન વિદ્યાનો શિબિર પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસીને એણે કર્યો. તો મિત્રો, પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે ત્યારે સામે બેઠેલા તમામ ઉપર વિશ્વાસ છે, કારણ કે અમને જીવન વિદ્યાના અધ્યયનથી એ ખબર પડી ગઈ છે કે શરીરની ઉંમર ઓછી વધતી હોઈ શકે, શરીરની ઉંમર સાથે સમજણને લેવા દેવા નથી. સમજણને લેવા દેવા તો કેવળ અને કેવળ એનું કેટલું ધ્યાન અસ્તિત્વગત સચ્ચાઈઓ ઉપર ગયું છે એની ઉપર જ છે. અત્યારે કૌટિલ્ય નામનો એક બાળક ખૂબ ફેમસ થયો છે, તમે ગૂગલ કરીને જોજો. તો કોઈ પણ નાનું હોય કે મોટું હોય કે વયોવૃદ્ધ હોય, શિબિરમાં પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે. શેનો પ્રસ્તાવ? અસ્તિત્વની સચ્ચાઈઓનો પ્રસ્તાવ. હમણાં હું તમને એક પ્રસ્તાવ મૂકીશ. પછી આ પ્રસ્તાવને બધા શિબિરાર્થીઓ પોતાની અંદર ચકાસે છે. એટલે શિક્ષકને અથવા પ્રબોધકને પ્રશ્નો પૂછે છે, જેથી એ પ્રસ્તાવ બરાબર પકડમાં આવે કે પ્રસ્તાવ શું છે. ત્યાર પછી પોતાની અંદર નિરીક્ષણ, રિસેસ પડે એટલે બધા સાથીઓનું અંદર ગ્રુપ ડિસ્કશન થાય. એટલે સ્વયંમાં નિરીક્ષણ, સાથીઓ સાથે પરીક્ષણ, અને પછી એક પ્રશ્ન પોતાની જાતને શિબિરના સમયગાળા દરમિયાન કે પછી પૂછતા રહે છે કે શું આ પૃથ્વીના 750 કરોડ માણસને સ્વીકૃત થશે? દોસ્તો, આ 3 પરીક્ષામાંથી પાસ થાય એને માટે મેં અહીંયા એક જ શબ્દ વાપર્યો છે, પરીક્ષણ. પણ એ છે નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, સર્વેક્ષણ. એટલે વ્યક્તિ એને સ્વીકારવા માટે તૈયાર થઈ જાય. સ્વીકારવું એટલે સમજવું, સમજવું એટલે જીવવું, જીવવું એટલે આચરણ. તો મિત્રો, 3 શબ્દો તમને સમજાયા કે શિબિરમાં પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે. બધા શિબિરાર્થીઓ એને માની નથી લેતા, ગળા નીચે ઉતારી નથી દેતા, બલકે એને તપાસે છે. એના માટે ગ્રુપ ડિસ્કશન થાય છે, ગોષ્ઠી કહીએ છીએ એને અમે. અને એને જો સ્વીકૃત થાય તો એના આચરણમાં આવે. હા, એવું જરૂર છે કે બધી વસ્તુ તરત એ જ દિવસથી આચરણમાં ના આવી જાય, પણ સ્વીકૃતિમાં આવ્યા પછી એ આચરણમાં લાવવાનો પૂર્ણ નિષ્ઠાથી જાતે પ્રયત્ન કરે, જેને અમે સ્વયંસ્ફૂર્ત પ્રયત્ન કહીએ છીએ. હવે મિત્રો, હું પ્રસ્તાવ મૂકું છું ને એની સાથે ચોથો મુદ્દો પણ આવી જશે. મારો પ્રસ્તાવ છે, પૃથ્વી ઉપરના 750 કરોડ માણસો સવારથી બીજે દિવસ સવાર સુધી જે કંઈ કરે છે તે કેવળ અને કેવળ સુખી થવા માટે જ કરે છે. ફરી રિપીટ કરું છું. પૃથ્વી પરના 750 કરોડ માણસો સવારના 7 થી બીજા દિવસના સવાર 7 સુધી આખી સમગ્ર જિંદગી દરમિયાન જે કંઈ કરે છે તે બધું જ કેવળ અને કેવળ સુખી થવા માટે જ કરે છે. એ સુખી થતા નથી કે ક્યારેક થાય છે, એ નિયમો ઉપર આધારિત છે. નિયમનું પાલન કરે સુખી થાય, એના માટે નિયમ સમજવા જોઈએ. જીવન વિદ્યા શિબિરમાં નિયમની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવે છે કે આ પહેલો પ્રસ્તાવ છે, પહેલા જુઓ કે તમે સુખી થવા માટે પ્રયત્ન કરો છો કે નહીં. અત્યારે હું આ સ્લાઇડ અહીં અટકાવું છું અને થોડા મિત્રોને આમંત્રું છું, જેમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે કે શું તમારો સમગ્ર પ્રયત્ન સુખી થવા માટેનો છે કે નહીં.
કોઈને કશો ડાઉટ હોય તો હું તો એમ પણ કહીશ કે કશું નથી કરતા તો પણ તમે સુખી થવા માટે જ નથી કરતા. એટલે એ કેસમાં કશુંક તો થઈ જ રહ્યું છે. ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને કે કોઈ પણ ક્રિયા વગર કોઈ રહી શકતું નથી. તમે કશું નથી કરતા એવું તમને લાગતું હોય, પણ તમારા શરીરમાં રુધિરાભિસરણની ક્રિયા ચાલી જ રહી છે, શ્વસનની ક્રિયા ચાલી જ રહી છે, હૃદય ધબકી જ રહ્યું છે. એટલે તમે કશું કર્યા વગર રહી શકતા જ નથી, કશું થયા જ કરે છે. કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? મેં એવો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે કેવળ અને કેવળ સુખી થવા માટે જ બધું થાય છે. જોઈ લો, ટીવી જોવો છો તો સુખી થવા માટે, ટીવી બંધ કરો છો તો સુખી થવા માટે, ઊંઘી જાઓ છો તો સુખી થવા માટે, ખાઓ છો તો સુખી થવા માટે, રોજ સવારે ઉઠીને ટોયલેટમાં જાઓ છો તો સુખી થવા માટે, દિવસમાં 5 થી 6 વાર માટલા પાસે જાઓ છો તો પણ સુખી થવા માટે જ જાઓ છો, અને ટોયલેટમાં જાઓ છો તો સુખી થવા માટે જ જાઓ છો. તમે લગ્ન પણ સુખી થવા માટે જ કર્યા છે. જોકે સુખી ના થયા હોય એવું બને કે વચ્ચે વચ્ચે દુઃખના એપિસોડ પણ આવતા હોય, પણ તમે પ્રયત્ન તો સુખી થવા માટે જ કર્યો હતો. તમે નોકરીએ જોડાયા તો સુખી થવા માટે જોડાયા, તમે નોકરી છોડી દીધી તો પણ કેવળ અને કેવળ સુખી થવા માટે જ છોડી દીધી. હવે કોઈને એમ થાય કે આવું તો સ્વીકારમાં તો આવે છે, પણ ઘણીવાર દુઃખના કેસમાં શું, તો હું તમને કહું કે વધુ દુઃખમાંથી ઓછા દુઃખમાં જવાનો પ્રયત્ન માટે તમે સ્થિતિઓ કરી છે, તો એ પણ સુખી થવાની ડિરેક્શનમાં જ છે. જેમ કે તમને તાવ આવે છે, મને એક શિબિરમાં એક જણાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સાહેબ દરેક વખતે એવું થોડું હોય, જેમ કે ઇન્જેક્શન લેવા જઈએ તો ઇન્જેક્શન તો દુખે, તો એ તો થોડું સુખી થવા માટે કર્યું હોય. મેં કીધું બિલકુલ સુખી થવા માટે. તાવ આવે છે એમાંથી છૂટવું છે એટલે ઇન્જેક્શન લીધું છે, તો એ પ્રયત્ન પણ સુખી થવાનો જ છે. એ લોકલી શરીરને પીડા જરૂર કરે છે, પણ તમે તો સુખી થવાનો પ્રયત્ન માટે જ ઇન્જેક્શન લઈ રહ્યા છો. એટલું જ નહીં, ઇન્જેક્શન લીધા પછી ડોક્ટરને થેન્ક યુ પણ કહો છો, પૈસા આપો છો, અને એ પૈસા કમાવા માટે નોકરી જાઓ છો ત્યાં પણ સુખી થવા. મેં ફેંકે હુએ પૈસે નહીં ઉઠાતા, એવો એક અમિતાભ બચ્ચનનો ડાયલોગ છે પિક્ચરમાં. મિત્રો, સુખનો એક ખ્યાલ છે સન્માન. હું તમારી સામે બીજો પ્રસ્તાવ મૂકું છું. જીવન વિદ્યાનો શિબિર આખો પ્રસ્તાવથી ભરપૂર છે. બીજો શિબિર છે કોઈને ગુલામી પસંદ નથી, તમને બધાને સ્વતંત્રતા પસંદ છે. તમને કોઈ ચલાવે, તમારી ઉપર કોઈ શાસન કરે, એ તમને પસંદ નથી. 750 કરોડમાંથી કોઈને પસંદ નથી, પણ કરવું પડે છે, કારણ કે બીજો છૂટકો નથી. જો છૂટકો બીજો હોય તો તરત છોડી દે. તમે આજે ગ્રુપની અંદર મારો પરિચય વાંચ્યો જ છે, તો સુરેશ પટેલ પણ એન્જિનિયરિંગની ધીકતી કમાણી છોડીને શિક્ષક થાય છે, કારણ કે ખબર પડી ગઈ કે કમાણી કરતાં સંબંધોમાં વધારે સુખ છે. પૈસા જોઈએ જરૂર, પણ શરીરની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા જોઈએ. શરીરની જરૂરિયાતો સીમિત છે, સુખની જરૂરિયાત અસીમ છે. સોમવારે સુખ જોઈએ અને મંગળવારે દુઃખ ચાલશે એવું થતું નથી. સુખ સતત જોઈએ. આશા રાખું છું તમને મારો મુદ્દો પકડાય છે અને રસ પડી રહ્યો છે. તો 4 શબ્દો મેં કહ્યા, હું ફરી પાછું સ્લાઇડ ઉપર લઈ જાઉં છું. સ્લાઇડ ખાલી તમારી એકાગ્રતા માટે છે. હા, આ બધું મારે જોઈતું નથી, કારણ કે જીવન વિદ્યામાં સીધું સમજણ ઉપર છે, પછી જીવવા ઉપર છે. એટલે જીવન વિદ્યાના પ્રબોધકો પોતાની પૂરી નિષ્ઠાથી જીવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, અને એટલા માટે શીખવવું સરળ બની જાય છે, કારણ કે જીવતા જીવતા જ બોલવાનું છે. તો મેં 4 મુદ્દા કીધા: પ્રસ્તાવ, પરીક્ષણ, આચરણ ને સુખ. હવે જે પહેલો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, એક જ ધ્યેય છે સુખી થવું, તો એના 2 જ પેટા પ્રશ્નો છે. શું કામ જીવવું ને કેવી રીતે જીવવું? વાય ટુ લીવ એન્ડ હાઉ ટુ લીવ. હવે જ્યારે જીવવું કહીએ ત્યારે મિત્રો, જીવવું એટલે ઉત્સવ હોય, આનંદ હોય તો જીવવું, બાકી તો શરીરનો ઢયડો કરવો. હિન્દીમાં બહુ સુંદર શબ્દ પ્રયોગ છે મિત્રો. શિબિર હું હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ ત્રણેયમાં ચલાવી શકું છું, પણ મોટે ભાગે ગુજરાતી ને હિન્દીમાં, ગુજરાતમાં હું ચલાવતો આવ્યો છું. ત્યાં બહુ સરસ શબ્દ છે, જિંદા રહેના અને જીના. दोनों सेम नहीं है, બંને સેમ નથી. जिंदा रहना यानी शरीर चलाना, जीना यानी उत्सव पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक, खुशी पूर्वक जीना. तो हमें अपने आप को सवाल पूछना है, हम जिंदा है कि जी रहे? दोस्तों, सुबह से शाम तक काम करें,
पर काम का लक्ष्य ना हो, काम का हेतु की स्पष्टता ना हो, केवल पैसे कमाने के लिए काम करेंगे तो जिंदगी में उत्सव कहां से होगा? कैसे जीना? तो टीचर बने हैं तो कैसे टीचिंग करें? पहले तो टीचर क्यों बनना? कई लोग विद्या सहायक बनते हैं, क्यों? और कोई नौकरी नहीं है तो विद्या सहायक बन गए। फिर क्यों? एक आशा थी कि 5 साल के बाद कायमी हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, फिर सैलरी नियमित मिलेगा। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर काम करते करते ये पकड़ में आ जाए कि अब डेली जाते हैं स्कूल, कुछ पढ़ाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं है, तो उसका स्पष्ट रहस्य ये है कि हमारे अंदर ये स्पष्टता नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम कैसे करने में तो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसमें बहुत अस्पष्ट रहते हैं। तो इस प्रस्ताव पर इसमें काम होता है। अब देखिए, जब 2 ही सवाल है तो कार्यक्रम भी 2 ही है। आपको लगेगा इतना शिक्षण का इतना वास्ट फील्ड है और कार्यक्रम 2 ही है। हाँ, कार्यक्रम केवल 2 ही है। पहला कार्यक्रम है शरीर की स्वस्थता, और दूसरा मेरे शरीर के आसपास जो कुछ भी है उसकी मुझे पूर्ण समझ। इससे ज्यादा कोई कार्यक्रम है ही नहीं। और अभी मैंने लाल कलर इसीलिए इस स्लाइड में बनाया है कि इसके बारे में मुझे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना ने 750 करोड़ को यह समझा दिया है कि शरीर की स्वस्थता प्रमुख है। दोस्तों, आज मैं एक दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भारत में इतने सालों से 5 से 6 हजार सालों से आयुर्वेद होते हुए भी हमने एलोपैथी को इतना स्वीकारा। आज फिर से आयुर्वेद की ओर लौट चले, क्योंकि अब समझ आ रहा है कि जब जंतु के अंदर जान ही नहीं है तो इसको मारेंगे कैसे। तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना केवल यही एक उपाय है। दोस्तों, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के बारे में आप शिक्षक सभी जानते होंगे, इसलिए मैं कोरोना की कोई बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि केवल और केवल शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति से ही हम बच पाएंगे। आयुर्वेद के पास खजाना है रोग प्रतिकारक शक्ति का। मैंने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, सर्व ज्वर हर। मैं अपने मित्रों के साथ इसको बनाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। वो तो स्वयं तो ले ही रहे, आसपास के श्रमिक लोगों में बांटने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो शरीर की स्वस्थता प्रमुख कार्यक्रम। दूसरा प्रमुख कार्यक्रम समग्रता, संपूर्णता की समझ। हमारे आसपास जो कुछ भी उसकी अगर हमें समझ नहीं होगी तो हम शरीर को भी नहीं चला पाएंगे। जैसे गाय की समझ, कुत्ते की समझ, ये तो कॉमन समझ है। हम जंगल में जाते हैं और खास करके हिंसक जानवरों के बीच तो कितने प्रोटेक्टेड होके जाते हैं, क्योंकि हमें ये समझ है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की समझ होने से हम छत पर से चलने नहीं लगते, क्योंकि हमें मालूम है नीचे गिरेंगे, टांग टूट जाएगी या मर जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक हमें संपूर्णता की समझ नहीं है, सभी प्रॉब्लम की जड़ वही है। आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन संपूर्णता क्या है? धुआं में यहां करूं या अमेरिका में हो, हवा तो एक ही है, सभी जगह फैली हुई है। वो डायल्यूशन तो होते होते सभी जगह पहुंचने वाला ही है, आज नहीं तो कल। तो जितना धुआं किया, आज पूरी पृथ्वी गर्म आ गई। तो दोस्तों, आज ऐसी स्थिति पर हम खड़े हैं कि अगर नहीं लौटेंगे, वैसे भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जैसी ही स्थिति है, ऐसा ग्रेटा थनबर्ग ने बताया है। तो केवल अब 2 ही रास्ते हैं, परिवार और शिक्षण। दोस्तों, मुझे इतना इसके लिए उत्साह है कहने के लिए, क्योंकि पुराने जितने भी हमारे मॉडल रहे उसमें सिखाने की पूरी प्रक्रिया संवेदना मूलक रही, अस्तित्व मूलक रही नहीं, या फिर भौतिकता वाली रही। जीवन विद्या का सबसे खूबसूरत प्रस्ताव है कि समाज का छोटे से छोटा एकम एक व्यक्ति नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और प्रस्ताव भी है। सोसाइटी का छोटा से छोटा एकम व्यक्ति नहीं है, परिवार है। दिखता तो ऐसे फिजिक्स में सिखाते, केमिस्ट्री में सिखाते, छोटा से छोटा अणु, परमाणु ऐसा बोलते हैं। यहां छोटा से छोटा एकम परिवार है। और दूसरा जो रास्ता है वो रास्ता है एजुकेशन। ये 2 ही रास्ता, 2 ही कार्यक्रम और यही लक्ष्य, यही ध्येय। तो सुखी होना हमारा ध्येय है। तो जीवन विद्या के अंदर सुखी होने का पूरा प्रस्ताव हो जाता है क्लियर। दोस्तों, जब शिविर में से आप बाहर निकलते हैं तो स्पष्टता के साथ निकलते हैं। अब कोई भ्रम नहीं रहता, क्या करना है ये स्पष्टता होती है, कैसे करना है वो भी स्पष्टता होती है। फिर बस उसके ऊपर चलना भर बाकी रहता है।
जो चल पड़ते हैं हमारे जैसे लोग, वो निरंतर प्रसन्नता तो अभी तक हम नहीं पा सके, लेकिन बहुत तक समय हम प्रसन्न रहते हैं, सुख एहसास करते हैं, इसके अनुरूप हमारी जिंदगी को ढालते हैं। दोस्तों, मुझे खुशी आपके साथ शेयर करते हुए, अभी आपके पास आने से पहले 20 मिनट पहले मैं 4 से 5:30 तक का समय करीब 118 लोगों के साथ था। उसमें कोई दोहा कतार से था, कोई लंदन से था, कोई अमेरिका से था और पूरे भारत भर में से लोग थे। इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनको मैं कभी नहीं मिला, और 90% लोग उसमें मिला दूं तो उसको तो चेहरे भी मैंने नहीं देखे, क्योंकि सभी के वीडियो ऑन नहीं रहते। तो बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन सभी के साथ प्यार भरा एक नाता जुड़ गया है। और आज 44वां दिन था, 44 दिन। तो पिछले 44 डेज से ये वेबिनार चल रहा है। और क्या नाम है उसका? लाइफ स्किल, जीवन जीने का कौशल्य। कैसे बोलना है, कैसे संबंध को बनाना है, कैसे निर्णय लेना है, ये सब मैं सिखा रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे रास्ता दिख दोस्तों, आपका ऑडियो बंद रखेंगे। आप अगर ऑडियो करेंगे बीच में चालू, तो मेरा ऑडियो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं वो संबंध का सुख पा रहा हूं। उसमें से कुछ एक लोग अभी भी यहाँ मौजूद है। उसमें टिपिकली राखी बहन तो सूरत से ही है। तो मैं आपको बताते हुए खुशी है मेरी, तो अलग अलग व्यवसाय के लोग जुड़े हैं। तो जुड़ने का जो डायमेंशन है वो व्यवसाय नहीं है, जुड़ने का डायमेंशन व्यवहार है। और दो इंसानों के बीच में व्यवहार होता है। ये जीवन विद्या का सुंदर प्रस्ताव है। पशुओं के साथ कार्य कर सकते हैं, पदार्थों के साथ कार्य कर सकते हैं, इंसान के साथ कार्य नहीं कर सकते। इंसान के साथ व्यवहार करना होता है। और मित्रों, गुजराती में कोई 100 रुपया चांदलो करे અને વ્યવહાર ના ગણતા। 100 રૂપિયાનું જ્યારે કોઈના લગ્ન પ્રસંગે ભેટ આપો છો તો હૃદયમાં આપવાનો ભાવ છે ખરો, કે તમારી ચોપડીમાં લખેલું છે કે તમારી દીકરીને લગ્ન થયા ત્યારે 100 આપ્યા હતા, તો હવે આપણે 100 આપો। પાછા ઘણીવાર તો કે આપવા પડશે। હવે કે બહુ સંબંધ તો રહ્યો નથી, પણ આપણે ત્યાં ચાંદલો કર્યો તો એટલે કરવો તો પડે ને। तो હું ये व्यवहाરની વાત નથી કરી રહ્યો। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सुखी होने का जो प्रयत्न है समझदारी पूर्वक, इसको व्यवहार कहते हैं। देखो, आप लोग शिक्षक हो, इसलिए मैंने परिचय के अंदर कुछ एक शब्दों की व्याख्या भी कर दी। नहीं तो हम जीवन विद्या के इंट्रोडक्शन में जीवन विद्या के शब्दों की परिभाषा नहीं करते, क्योंकि लोग उलझ जाते हैं। लेकिन मेरी शिक्षकों से ही अपेक्षा है कि ये इतना सरलतम आप समझ सकोगे। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ सुखी होने के लिए संवाद करे, वो व्यवहार है। वो संवाद के साथ साथ खाना पीना लेन देन हो सकता है, पर वो प्रमुख नहीं है। तो मैं कुंजल बहन के घर जाऊं और वो मुझे केवल दोपहर की सूखी रोटी और चाय दे दे तो चलेगा, लेकिन अगर वो मुंह फुला के सोने की थाली में 20 व्यंजन रख दे तो मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे भूख सम्मान की है। मेरे शरीर को लड्डू की भूख हो सकती है, लेकिन मेरी भूख तो सम्मान की है। दिख रहा है आपको मैं सम्मान शब्द का क्यों प्रयोग कर रहा हूं? आज शिक्षक समाज में सम्मानित नहीं है, विद्यार्थियों से भी सम्मानित नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि शिक्षक का स्वयं का ध्यान चला गया कि हर एक इंसान को सम्मान की भूख है, तो इसके सामने बैठे विद्यार्थियों को भी इतनी ही सम्मान की भूख है। अगर सम्मान की भूख की तृप्ति की गई तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। मैं उसका, मेरा जिंदगी स्वयं साक्षी है। इतने विद्यार्थी मुझे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। केवल एक ही भाव, क्लास में गए तो या जाने से पहले से वो भाव शुरू होता है कि मेरे अपने परिवार के अंदर मुझे उत्सव क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बोलूंगा? तो मुझे सोचना होगा, अपने अंदर विचार की एक प्रक्रिया को सटीक बिठाना होगा, क्योंकि सब समय मर्यादा में कहना है। हालांकि शिविर में काफी प्रवाहिता रहती है, क्योंकि फ्रीडम ही फ्रीडम है, जबकि वेबिनार में घंटे भर की मर्यादा रहती है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। बीच में किसी के आवाज से मैंने रोक दिया था, मैं स्लाइड को पूरा करता हूं। मुस्कुराते रहिए,
मुस्कुराने के दिन है ना आहें भरो, मेरे होते क्यों आप खुद को परेशान करो, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। बाकी की लिटी में क्यों बोलूं? तो सुखी होना मेरा भी ध्येय है, आपका भी ध्येय है, दो ही एजेंडा, क्यों जीना कैसे जीना। इसके लिए शरीर फिट चाहिए, समग्रता की समझ चाहिए जो शिविर में मिलती है। दो रास्ते, उसमें पहला रास्ता परिवार, दूसरा रास्ता शिक्षण। अब आप शिक्षक के अंदर है, शिक्षण में है, तो मैं शिक्षण के बारे में बात करता हूं। तो शिक्षण में क्या हो सकेगा? सबसे पहले तो अच्छी जो चीजें चल रही है उसका भी स्वीकार करें, पर साथ साथ हिम्मत पूर्वक मर्यादाओं का स्वीकार करें। तो अच्छी बाबत चलेगी, चलनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए और मर्यादाएं दूर होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी स्कूल्स ऐसी होती है जिसमें सुबह में प्रार्थना कराते हैं। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना में केवल भीख मांगना है तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई बच्चा सुबह में आके ये प्रार्थना करता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो ये भीख मांगना है, डेली भीख मांगना है। बच्चा सोचता है इतनी तो शक्ति है, मैं चल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, सोच सकता हूँ, रो सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ, इतने बड़े दफ्तर को उठा सकता हूँ, एक साथ 7 विषय पढ़ सकता हूँ, और कितनी शक्ति चाहिए। एक जमाना था ये प्रार्थना चलती थी। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है। गूगल के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर शिक्षक गूगल से बेहतर नहीं हुआ तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। तो जो अच्छी बातें हैं उसको स्वीकारे, मर्यादाओं को दूर करे। तो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। आज की मोस्ट ऑफ द स्कूल्स समझाने की कोई शिक्षा नहीं देती, याद रखने की शिक्षा देती है, और परीक्षा समझ शक्ति की नहीं होती लेकिन याद शक्ति की होती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के नियम में 10 में से 10 मार्क लाने वाले बच्चे आराम से पत्ते तोड़ते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी छोटे छोटे कीटकों को मार देते हैं, सोए हुए कुत्ते को पत्थर मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर इन्होंने सही में बायोलॉजी पढ़ी होती। तो ये लोग पढ़ते नहीं है, समझते थोड़ी है, वो तो रट्टा लगाते हैं। तो एग्जाम का ध्येय अच्छे मार्क लाना। और क्यों अच्छे मार्क लाना? क्योंकि आगे जाके व्यवसाय अच्छा मिले। क्यों? ताकि पैसे अच्छे मिले। क्यों? ताकि घर में सामान अच्छा आए। दैट्स इट। ये पूरी श्रृंखला सिलेबस से लेकर के फैसिलिटी तक पूरी हो जाती है। ये मेजोरिटी बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% स्कूल ऐसी है। अच्छी स्कूल भी है और अच्छे शिक्षक भी है। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले। तो आज मैं जो भी शिक्षक का कर्तव्य कर रहा हूं, हालांकि मेरा तो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मुझे शिक्षक कर्तव्य करने के लिए काफी चीजें सीखनी पड़ी। पर मैंने बीएड नहीं सीखा, मैं इंसान को सीखा। क्योंकि मुझे मालूम था कि एजुकेशन की पूरी प्रक्रिया इंसान के अंदर कुछ स्फुरण करने की प्रक्रिया है, कुछ प्रकटन करने की प्रक्रिया है। इंसान कोई डिब्बा नहीं है कि जिसके अंदर कुछ डाला जाए। इंसान का केवल ध्यान खींचना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ व्याख्या कर दी है। शिक्षा का लक्ष्य शिष्टता का उदय। क्या है शिष्टता? 4 चीज। पदार्थ का उपयोग। आज पानी की प्रॉब्लम, बिजली के पंखे बंद करो भाई, बिजली की लाइट बंद करो, ऐसा कहना पड़ रहा है, राइट? तो पदार्थ का उपयोग हो। वनस्पति, एक बीज डालो 2000 बीज निकलते हैं। एक पोटैटो डालो, कितने पोटैटो निकलते हैं? लोग पैसों के लिए कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, ओनियन, पोटैटो, लेमन, फिर स्कैरसिटी कर देते हैं और फिर बहुत पैसे में बेचते हैं। इसलिए हमारे हजारों लोग भूखे रह जाते हैं क्योंकि अब वो खरीद नहीं सकते। ये वनस्पति का दुरुपयोग है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सदुपयोग। तीसरा, प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता का भरा कार्य। और चौथा, मानवों के साथ संज्ञानशीलता, समझदारी भरा कार्य। ये एजुकेशन में हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों में जो कल्पनाशीलता है, सभी को सलमान खान बनना है या क्रिकेटर बनना है। क्यों? क्योंकि लोग तालियां बजाए और पैसे बहुत मिले। तो कल्पनाशीलता के साथ वास्तविकता का मेल नहीं है। आज पूरी हमारी यंग जनरेशन फैशन के अंदर जा रही है। देखिए, परमिसिवनेस, तमाम प्रकार की फैशन के साथ जुड़ी हुई सभी नॉनसेंस चीजें जिसमें तर्क भी नहीं है, ऐसी चीजें हमें एज ए पेरेंट्स पसंद नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता में तो यही ठीक चल रहा है। दोस्तों, मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षक की जो भूमिका है
वो समग्र समाज के लिए आदर वाली बने, ये मेरा खुद का भी लक्ष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे कोई परिचय दे, जब कहे कि मोटिवेटर है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, स्पीकर बोले तो और बुरा लगता है, इंजीनियर बोले तो क्योंकि मैंने वो शिक्षा पाई है इसलिए थोड़ा कम बुरा लगता है, लेकिन जब मुझे कोई कहे कि शिक्षक है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक जूता बनाने का काम, एक सुई बनाने का काम, ये महत्वपूर्ण काम है कि एक इंसान बनाने का काम, जो कि जूता भी बना सकता है, सुई भी बना सकता है, विमान भी बना सकता है। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो पूरे समाज के लिए है, क्योंकि वो ऐसे इंसान खड़ा करता है जिससे समाज खड़ा होता है। तो आज हमारे पास समाज की जो स्थिति है, आप देख सकोगे आज से 30-40 साल पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में कितना अंतर है। तो शिष्टता के उदय में स्वयं में विश्वास हो, हर एक बच्चा विश्वास पूर्वक बाहर निकले। आज तो कैंपस प्लेसमेंट में रोते हैं, नौकरी नहीं मिलती, लगभग सभी ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिलती, इसीलिए बहुत बड़ी बेरोजगारी है। एक बार ऑटो में मैं हैरान था, मैकेनिकल इंजीनियर मेरी ऑटो चला रहा था, क्योंकि मेरा किसी के साथ फोन पर बात हुई, उस व्यक्ति को उसमें बहुत इंटरेस्ट पड़ गया। तो जैसे मेरा फोन खत्म हुआ, ऑटो चलाते चलाते बोल रहा, सर मैं भी इंजीनियर। कुछ नहीं था, घर में स्थिति ऐसी थी, पापा ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मैं इंजीनियर बन गया, नौकरी नहीं मिली, क्या करूं? पापा को रिटायर कर दिया, रिक्शा चलाता हूं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है रिक्शा चलाने में। पर ऐसे बहुत कम होते हैं, बाकी पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन जाते हैं या फिर समाज के ऊपर। देखिए, बेरोजगारी की वजह से जितना न्यूसेंस है उसमें समाज में अशिष्टता, हमारी बच्चियों के साथ बदतमीजी और बहुत प्रकार के सोशल न्यूसेंस चल रहे हैं। तो परिवार में आवश्यकताओं का निर्धारण हो जाए, परिवार में खींचातानी बंद हो, समाज में सुरक्षा हो और प्रकृति में संतुलन हो, ये लक्ष्य शिक्षक के द्वारा संभव है। और दोस्तों, आपको लगेगा कि जीवन विद्या से होगा, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी हो ही रहा है। इलाके का शायद मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित भाई को कि वो रखे, मनीष भाई सिसोदिया की वजह से दिल्ली एजुकेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में से, इंग्लिश मीडियम की कॉन्वेंट स्कूल में से उठा के सरकारी स्कूल में रख रहे हैं। और ये पूरा जादू जीवन विद्या के शिविर के चलते हुआ है, क्योंकि शिक्षक को शिविर में से पास होने के बाद निकले, उनकी भूमिका बिल्कुल बदल गई, क्योंकि वो अस्तित्वगत सच्चाई समझ गए। तो दोस्तों, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की भूमि है लीडर की भूमिका। वो क्लास का तो लीडर है ही है, बच्चों को लर्निंग कराने में लीडर तो है ही है, पूरे सोसाइटी के वो लीडर है, क्योंकि पूरी सोसाइटी उनके पास से तैयार होती है। जैसे ये चीज जब इसको लगने लगेगी, तब वो नेता बन जाएगा। नेता बनने के लिए टोपी पहनने की आवश्यकता नहीं है। फिर होती है पूर्णता की भूमिका। भूमिका यानी रोल। क्या है पूर्णता की भूमि या पूर्णता की भूमिका? शिक्षक अपने आप को तभी पूर्ण महसूस करता है जब वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर ले। जीवन विद्या का एक सुंदर सूत्र है, मनुष्य अपने महत्व को जानकर और जीकर ही तृप्त होता है। तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ कौशल्य है, शिक्षक के अंदर भी कौशल्य की वैरायटीज है। उसका जब पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है तब वो तृप्ति महसूस करता है, और शिविर के अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि उसकी तृप्ति की कहाँ पड़ी है, क्योंकि उसका ध्यान खुद की क्षमता पर चला जाता है। मैं जो खुद की क्षमता कहता हूँ, जीवन विद्या के अंदर 10 शक्ति बल शक्ति संपन्नता की बात होती है, यहाँ अभी इसको मैं नहीं समझा सकूंगा। तो वो बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। शिक्षक अब नई भूमिका शुरू करता है, गुरु, पिता, माता, मित्र, भाई और बहन। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी है, इस भूमिका को प्ले करते करते, जीवन विद्या से पहले हालांकि मैं 98 से ये प्ले करता आया था, लेकिन वो मेरे लिए इंटरनल स्फुरिंग था, वो मेरे पास लॉजिक नहीं था। शिविर में आने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, तो मुझे बिल्कुल ये भूमिका स्पष्ट हो गई, वो और भावुक बन गई और सटीक हो गई। तो गुरु की भूमिका के अंदर मार्गदर्शन करते हैं, पिता की भूमिका वात्सल्य की भूमिका है, माता की भूमिका ममता की है, मित्र की भूमिका सहयोगी है, भाई बहन की भूमिका भी सहयोगी सहकारी है। तो ये सब भूमिकाओं में से हम ऑपरेट होने लगते हैं। तो बच्चों को कार्य के अंदर हमारा सहकार, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है विचार की,
उसकी कल्पना में वास्तविकता की सच्चाई जाए, उसके लिए सहयोग, और एक मानव होने में उसका पूरा प्रयत्न है, माता पिता का जो प्रयत्न है उसमें संवर्धन। ये 3 प्रकार की भूमिका शिक्षक की भूमिका है। इसीलिए शिक्षक कभी पार्ट टाइम नहीं हो सकता। शिक्षक है तो केवल शिक्षक है और 24 घंटा शिक्षक है। शिक्षक स्विच ऑफ नहीं हो सकता। शिक्षक कॉलेज या स्कूल से घर तो जा सकता है, लेकिन उसकी विचार की प्रक्रिया, उसकी भाव की प्रक्रिया अटकती नहीं, और जिस दिन अटक जाए वो शिक्षक नहीं रहता, वो फिर वेतन भोगी व्यावसायिक हो जाता है। आज मेरे क्लास के अंदर कोमल नाम की बिटिया ने कुछ शेयर किया है। रात में नींद में भी मुझे सपने में उसका सॉल्यूशन दिखे कि ऐसे में बात करूंगा तो कोमल की जिंदगी में फूल खिलेंगे, ऐसा मुझे दिखे तब मुझे शिक्षक को होने की तृप्ति मिलेगी कि हाँ, मैंने किसी की जिंदगी में फूल खिलाए। एक शिक्षक विद्यार्थी के मार्क से प्रसन्न नहीं होता। एक शिक्षक तभी खुश होता है जब बच्चा दूर से आके या तो पांव छुए या गले मिले। वो अनुभव की बात है, ये अनुभव करने के बाद ही पता चले। मैं आपके साथ एक शेयरिंग करना चाहता हूं, नाम के साथ शेयरिंग करूंगा। आज मैंने लिंक भी उसको भेजी है, वो जुड़ी कि नहीं जुड़ी नहीं मालूम। नाम उसका है जिंदगी। 2010 या 11 की साल है। गांधीनगर के पास शाहपुर, जहां आज गिफ्ट सिटी बन चुका है, वहां एक अरण्य पार्क था। अरण्य पार्क के अंदर मेरा कड़ी यूनिवर्सिटी का लीडरशिप का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम समाप्त हो गया तो सभी बच्चे मुझे गले मिलके, 60 बच्चे होते हैं तो बारी बारी सभी बच्चियां, 30 गर्ल्स 30 बॉयज गले मिलके रो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ एक प्रोफेसर, ट्रस्टी वगैरह लोग देख रहे हैं। फिर थोड़ी आवाज लगाई कोऑर्डिनेटर ने कि चलो बच्चों, अब बस आ गई है, जाना है। सभी बच्चे धीरे धीरे अलग होते गए, लेकिन जिंदगी अलग नहीं हुई। जिंदगी और रोती रही। कितना मैंने पानी पिलाया, उसके साथ में बैठा, लेकिन जिंदगी का नहीं जाना सर। नाम भी जिंदगी। और आज सुबह जिंदगी का मैसेज आया, क्या सर, मैं डेली प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, कितने साल हो गए। शिकागो के अंदर जिंदगी रहती है, और मैंने कहा कि बेटा हो सके तो आज शाम को वेबिनार में आओ, क्योंकि उसने वहाँ टीचिंग का काम करना शुरू किया है। बीएड तो नहीं कर रही थी, पर आप जानते हो अमेरिका में लोग जाते हैं, फिर वहाँ छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं और अलग अलग भूमिकाएं करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज तो अभी शुरू होती है, क्योंकि ये अनुभव तो बहुत सारे शिक्षकों को होता है। उनके एक शिक्षक दूसरी बैच में आए और कहे कि पहली लास्ट बैच में तो मैं वैलिडिक्शन में केवल देखने आया था, इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा है कि तुम ऐसे शिक्षक बन जाओ तो हमें सुरेश भाई को बुलाना ना पड़े। और सुरेश भाई एक आध बैच ले, यूनिवर्सिटी तो इतनी बड़ी है, इतने विद्यार्थी है, कुछ एक बैच तुम लो। तो मैं सीखने आया हूं। दोस्तों, मुझे ये कैसे पता चला? आते ही उन्होंने नहीं बताया। 1.5 घंटे के सेशन के बाद मैंने चाय के ब्रेक में कहा कि मिस्टर पटेल, आपकी आंखों से और आपके चेहरे से मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आप यहाँ सीखने नहीं आए। सुबह में तो बोले थे सीखने, लेकिन आप तो जज कर रहे हो। बताइए एजेंडा क्या है? उन्होंने एजेंडा खोल दिया। मैंने कहा चलो, सब मटेरियल पहले से दे देता हूँ, हर एक ब्रेक आपके साथ बिताऊंगा, कैसे मैं सिखाता हूँ, कैसे मेरे मन के विचार है, सब शेयर करूंगा। तो मुझे खुशी है यूनिवर्सिटी के डिसीजन से, क्योंकि देश को बहुत अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि मेरे पास एक अच्छा शिक्षक तैयार होकर विद्यार्थियों की जिंदगी में फूल खिला दे। मैंने सब शेयर किया। फिर यूनिवर्सिटी ने दूसरा बैच ऑर्गेनाइज किया। बैच शुरू हुआ, लंच के ब्रेक तक सभी बच्चे रहे। लंच ब्रेक के बाद चुपचाप खिसक गए। बस तो 35वें दिन आने वाली थी। उस जगह से चलते हुए पार्क में से निकल गए, रोड पे चलते हुए निकल गए। यहां तो सब आराम कर रहे थे। फ्लॉप शो हो गया। फिर से मेरा शिविर हुआ। फिर से वो शिक्षक आए, थोड़े बेचारे परेशान, बोले सर वो शिविर तो हुआ, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गया, सभी बच्चे चले गए। मैंने आप जैसे बोलते थे वैसे ही बोला।
आप जो मटेरियल शेयर करते थे वो सब आपने दे दिया था, मैंने वही दिखाया। और सर मुझे ये समझ में नहीं आता ये बच्चे रोते क्यों हैं। हमारे पास तो इनकी मार्क की चोटली होती है, बड़े ड्रामेबाज भी होते हैं तो रो भी सकते हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। सर ऐसा रहस्य क्या है? तो दोस्तों मैंने वो रहस्य बताया था जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा आपके लिए सुरेश पटेल है। क्लास में जब सुरेश पटेल एंटर होते हैं तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट ट्रेनर नहीं एंटर होते, एक बाप एंटर होता है। तो आपने देखा होगा कि पूरे बैच में मैं डांटता भी हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाप की डांट तो बच्चों को अच्छी लगती है, उस समय भले रो ले। तो जब पिता से कोई बच्ची अलग होती है तो रोएगी, कोई अपने पिता से बेटा अलग होगा तो रोएगा। रहस्य यह है कि शिक्षक की भूमिका अभिभावक की भूमिका है। यहाँ आज जो अभिभावक जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अभी तक पूरी शिक्षक की बात की। अभिभावक बच्चों के साथ शिक्षक से भी ज्यादा समय रहते हैं और वो जो बोलते करते हैं उसका सीधा संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, तो वो शिक्षक है। और जीवन विद्या का ये सुंदर प्रस्ताव है कि परिवार और शिक्षा ये दोनों ही काम कर सकते हैं। परिवार और शिक्षा, मैंने 2 पॉइंट दिए थे। पूरी सोसाइटी का गठन करना है तो 2 ही कर सकते हैं। अच्छा, माता पिता से भी ज्यादा शिक्षक कैसे कर सकते हैं? अब इसका रहस्य बताता हूं। एक माता पिता के पास 1 या 2 बच्चे सीखते हैं। बच्चों को जब ये कहा जाए कि तुम्हें स्कूल जाना है तो बच्चे के अंदर ये भाव बनता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूं जिसके पास सीखने कहां कहां से लोग आते हैं। ये होता है सम्मान की शुरुआत। इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं इनको मालूम है माँ की बात नहीं मानेंगे लेकिन टीचर की बात तो मानेंगे ही। मेरे टीचर ने कहा है। क्राफ्ट के केस में बहुत ज्यादा होता है, मैंने मेरे घर में भी देखा है। अभी कुछ घर से बना के ले आओ ऐसा कहा गया तो पूठा वगैरह हम लोगों ने मैनेज किया। अब टीचर ने कहा होगा कि भाई झोंपड़ी के ऊपर जो कलर है पेपर, ब्राउन पेपर लगाना। तो मेरे घर में ब्राउन पेपर नहीं था तो मैंने कहा कि भाई येलो पेपर लगा दो। बोले नहीं टीचर ने कहा है। पर टीचर ने कहा है तो क्राफ्ट करने को कहा है ना, एक घर का क्राफ्ट करना है उसमें येलो कलर लगाओ। नहीं येलो कलर नहीं चलेगा। रोना शुरू कर दिया, मुझे बाजार जाके येलो कलर लाना पड़ा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ए टीचर। टीचर ने कहा है तो ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि टीचर की बात मानने वाले 60 विद्यार्थी। ये सम्मान की शुरुआत है। और अगर टीचर भावपूर्ण हो जाए, और देखो भावपूर्ण લાગણી વેડા નથી, હું એવું જરાય નથી કહી રહ્યો કે તમે ખોટી ખોટી લાગણી ઉભરાવો। તમારી અંદરથી એ ઉગવું જોઈએ। અને ઉગે કેવી રીતે? તો મેં કહ્યું તમને, પાણીનું ઉદાહરણ આપ્યું। पानी का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया और हिंदी में इसलिए बोलता हूं कि मुझे याद आया कि उसमें कुछ एक शिक्षक हिंदी भाषी भी जुड़े। पानी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पानी संवेदना के एंगल से देखेंगे तो खाली प्यास बुझाने का लिक्विड है, और अस्तित्व की सच्चाई से देखेंगे तो ऐसा महत्वपूर्ण द्रव है जिसके ऊपर जीव सृष्टि निर्भर है। ऐसा अगर बच्चा बचपन में समझ जाए, पानी का गिलास नहीं फेंक सकेगा, इम्पॉसिबल। ये केवल शिक्षक कर सकता है। अब रही बात भाव की, दोस्तों शिविर में आप ये समझ पाओगे कि आपके सामने जो बच्चा आया है वो है क्या। अभी यहां नहीं कह सकता मैं कि मानव का होना क्या है। मानव का होना प्राणी नहीं है। मैं यहाँ सभी शिक्षकों को, अगर विनोद भाई मुझे ये कहे कि सुरेश भाई शिक्षकों को फायर मारो, तो मैं कैसे फायर मारता हूं बताऊं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऐसा कहकर के तुम शिक्षकों ने पूरे के पूरे विद्यार्थियों को प्राणी जैसे सोचने करने मजबूर कर दिया है। 4 प्रवृत्ति प्राणी करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसके सिवा प्राणी के पास कोई स्कोप नहीं है। तो शिक्षा की पूरी प्रक्रिया बाहर निकलने के बाद केवल आहार जुटाना नहीं है, ऐसी सोचना कि कोई भूखा ना रहे, ये इंसान की कैपेबिलिटी है। और ये आप तभी देख पाओगे जब स्वयं को जान पाओगे। तो जीवन विद्या में आप स्वयं के स्वरूप का दर्शन करते हो। तो दोस्तों अंत में शिविर कैसे चलता है? शिविर कैसे चलता है इसके बदले में ये कहूं कि मैं कैसे चलाता हूं। फिर आपको लिंक भी मिलेगी। आपको पूरा शिविर देखना हो तो 40 घंटे का शिविर ऑलरेडी नेट पर उपलब्ध है। जीवन विद्या का पूरा विषय वस्तु कॉपी लेफ्ट है। लोग बोलते हैं ना कॉपीराइट, पूरे मानव बंधुओं के लिए, पैसा कहीं पर भी नहीं है। आप किताब पूरी डाउनलोड कर लो, शिविर डाउनलोड कर लो, मेरे जैसे शिक्षक को बुला लो, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, स्वयं के भाड़ा खर्च करके आऊंगा। और
शिविर स्थल पर जो भी आयोजित करते हैं यूजुअली ऐसा करते हैं कि शिविर स्थल का टोटल खर्चा मिला के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए पर हेड कितना खर्चा आएगा इतना घोषित करते हैं कि ये है सहयोग राशि। पर साथ में ये भी कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक दीजिए, नहीं दे सकते तो मत दीजिए, क्योंकि आयोजन के समय ही निश्चित रहता है कि मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। लोग नहीं दे पाएंगे तो भी परिवार के लोग हैं, उनके लिए करना अपनी प्रसन्नता है, मैं भुगत लूंगा। दोस्तों मैंने काफी शिविर आयोजित किए, मैं आपको खुशी खुशी बताता हूं। मैं जब ना कहूं तो लोग मेरे जेब के अंदर, मेरे लैपटॉप बैग के अंदर पैसे छूट जाते चिट्ठी के साथ कि हमें बिल्कुल मालूम है इतना खर्चे में नहीं हुआ होगा, ये पैसा ले लीजिए, क्योंकि कहीं से वो इंफॉर्मेशन ले ही लेते हैं कि ये बिल का इतना पेंडिंग बाकी है अभी। तो दोस्तों आज तक इस सोसाइटी ने मुझे कभी निराश नहीं किया, और मेरे जैसे सभी प्रबोधकों का अनुभव है कि लोग एक बार शिविर करते हैं उनकी जिंदगी पूरी ऐसे खुलती है। मैं राखी बहन कुंजल बहन को कहना चाहूंगा, मैं जो भी आपको लाइफ स्किल में सिखाता हूं उसके पीछे भी प्लेटफॉर्म तो जीवन विद्या का है कि आप सब मेरे अपने हो। आपको जो भाव टच करता है ये इसका प्रूफ है, राइट, कि एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। वो शब्दों से शायद ना पहुंच पाए पर भाव से जरूर पहुंचता है। आज मुझे खुशी है नीरव कभी मेरा स्टूडेंट रहा, आज एक अच्छा शिक्षक बन गया है, आज वो उपस्थित है यहाँ। तो एक भाव तत्व से जब आप जुड़ते हैं वो हम फिर निरंतर जुड़ाव रहता है। तो एक अद्भुत सूत्र बोलता हूं, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। केवल एक बार अच्छी तरह ध्यान चला जाए तो फिर हमेशा बना रहता है। संसार में हमें बहुत सारे शिक्षकों ने बंद आंख करके ध्यान करना सिखाया, वो बुरा नहीं है पर उसकी मर्यादा है। बंद आंख करके आप स्वयं के अंदर चलने वाली क्रियाओं को तो देख सकते हो, लेकिन उसका कनेक्शन लाइफ के साथ फिर रहना चाहिए। मेरा तब ध्यान गया था जब मेरे मासा ऐसे माला करते थे आंख बंद करते, और चालू माला में आंख खोल के कहते चंदा चाय को कितनी देर है। मेरी मौसी का नाम चंदा था, तो मुझे समझ में आ गया कि अंदर भी तो चाय ही चल रही है कि कब चाय आए, फिर नाम कुछ भी बोले। तो जिस ध्यान का संबंध बाहर की दुनिया के साथ नहीं है वो ध्यान से फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी शांति जरूर हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है, ये सब फायदे हैं, पर ध्यान की महिमा जो है पूरे अस्तित्व को समझने की क्षमता। तो दोस्तों हालांकि मैं जीवन विद्या का परिचय हमेशा से हमारे परम आदरणीय नागराज जी के नाम से करता हूं, लेकिन आप शिक्षक लोग थे और कोई पूर्वग्रह न बन जाए इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। दक्षिण भारत कर्नाटक में आदरणीय नागराज जी जैसे गृहस्थ हुए, जिनके घरों में शंकराचार्य को संस्कृत सिखाया जाता था, वेद सिखाए जाते थे, ऐसे वेद पाठी परिवार के अंदर पैदा होते हुए भी बचपन में नागराज जी के अंदर ये सवाल आया कि कहते हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ब्रह्म जगत के अंदर फैला है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? अगर इंसान के अंदर भगवान बैठा है तो इंसान गलत काम कैसे कर सकता है? घर में कहा गया कि मान लो, वेद में कहा है मान लो, इन्होंने कहा नहीं मानूंगा। दोस्तों इसलिए जीवन विद्या में मैं जब शिविर शुरू करता हूं पहला सूत्र लिखता हूं, मानना नहीं है, जानना है। कैसे जानना है? निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। जानने में पूरा दम लगा देना है, और हर एक बच्चा जान सकता है, हर एक इंसान जान सकता है, ये हर एक इंसान की महिमा है। इसलिए सभी इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ सकते हैं। शिविर में से गुजरते आपके अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ हर एक इंसान जान सकता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आप देखते हो कि छोटे बच्चे भी बैठे, बड़े भी बैठे, और सब जान सकते हैं। केवल शिक्षक की भाषा कॉमन होनी चाहिए, ये इतनी जरूरत है। तो दोस्तों शिविर ऐसे चलते हैं, 100-150 की संख्या होती है। मैंने विनोद भाई और रोहित भाई के सामने प्रस्ताव रखा है कि लॉकडाउन की स्थिति खुलते ही हम पालीताना में शिविर करें, पर लॉकडाउन की स्थिति, सरकारी जो भी डिसिप्लिन हमें फॉलो करनी है, अल्टीमेटली हम इसी भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो हम शायद वेबिनार के फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हैं। वेबिनार के फॉर्मेट में करने में मर्यादा केवल यही है कि जैसे आज अभी शुरू हुआ था तो कोई खाना खा रहा था, शर्म नहीं आती, एकाग्रता नहीं रहती। लोग चालू शिविर के अंदर वीडियो ऑफ करके खाना खाना चले जा सकते हैं। खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
शिविर का विषय वस्तु ऐसा है, हमने उसको निवासी घोषित किया है। निवासी क्यों? केवल और केवल जीवन विद्या के विषय वस्तु में ही आप रहे, क्लास के अंदर भी, ब्रेक में भी, रात में सोए न जाए तब तक अपने साथी के साथ लगातार यही रहे, तभी जाके आपका निरीक्षण कंप्लीट होगा स्वयं के अंदर। नहीं तो स्वयं को देखने का छोड़ के फिर भाजी पांव देखने में चले जाएंगे। तो दोस्तों, निवासी शिविर करते हैं सभी प्रबोधक, और निवासी शिविर करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि जो चीज टुकड़े टुकड़े में जाती है, जैसे खिचड़ी 10 मिनट हीट दोगे तो कुकर चढ़ेगा, ऐसा मान के 1 मिनट हीट दो, स्टव बंद करो, फिर 10 मिनट के बाद 1 मिनट हीट दो, ऐसे टुकड़े टुकड़े में 10 मिनट हीट दोगे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक एकाग्रता के साथ इसी विषय वस्तु पर लगे। तो मैंने मेरी बात यहाँ पर समाप्त करी है, जैसे घंटे का समय दिया था। हालांकि मैं उपलब्ध हूँ आपकी सेवा के लिए, आपको किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप बता सकते हैं। तो मेजोरिटी शिविर का प्लेटफॉर्म मैंने कहा वो नॉर्मल क्लासरूम जैसा है। हाँ, लेकिन यहाँ आपको जान के एक चीज का बड़ा आश्चर्य होगा पंकज भाई, शिविर में आप मेरे सामने टांग लंबी करके भी बैठ सकते हैं, आप सोते हुए भी सुन सकते हैं। मेरे शिविर में सगर्भा स्त्री है, स्तनपान कराने वाली महिला है, ये सब आए हैं और सब स्वीकृत है, क्योंकि इंसान होना एक ही कंडीशन है, इंसान और भाषा। मैं हिंदी में बोलता हूं तो हिंदी आनी चाहिए, गुजराती में बोलता हूं तो गुजराती, तो सब स्वीकृत है। क्योंकि मुझे पकड़ में आ गया है, कोई टांग लंबी करके आदर शिक्षक का नहीं कर सकते, या टांग छोटी करके नहीं कर सकते। एक शिक्षक का आदर उसकी बात पर ध्यान देने से होता है, और ध्यान देने में टांग आड़े आती है तो टांग को खोल दो, क्योंकि 1.5 घंटे का सेशन रहता है। हम गद्दा लगाते हैं, कुर्सियां भी लगाते हैं, सोफा भी लगता है, जिसको जैसे बैठना है बैठे, क्योंकि कोई टांग से नहीं सीखता। सीखने वाला तो मैं हूं, जो शरीर से अलग कोई वास्तविकता है, उसके ऊपर ध्यान पहले दिन से ही चला जाता है कि अरे यार ये जब्बर है, टीचर के सामने टांगे लंबी करके बैठ सकते हो। यहाँ शिक्षक को कोई आश्चर्यचकित होगा कि भाई शिक्षक के सामने अदब पलाठी मुंह पर आंगली। स्कूल में मैं ये सुन के बड़ा हुआ हूँ, धोरण 1 से 4 अदब पलाठी मुंह पर आंगली, इतनी रुक्ष शिक्षिका थी, आज भी मन में पड़ा है वो। ऐसा क्यों? कुछ प्रश्न मत पूछो। जीवन विद्या के पूरे सत्र के अंदर लगातार प्रश्नों की झड़ियां बरसती है, क्योंकि लोग इतने वैरायटी के प्रश्न पूछते हैं कि हम प्रबोधकों को रात को 11-12 बजे तक नींद नहीं आती, क्योंकि वो सोने के समय के बाद भी रूम में आके पूछते हैं कि ये इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, और हमें इतनी तृप्ति मिलती है। तो मैं फाइनल मैसेज दे देता हूँ, शिक्षक कर्तव्य में मैं कभी नहीं थका हूं, ना कभी थकूंगा। वो हमेशा तृप्तिदायक रहता है, हमेशा फुलफिल होता है। प्रत्येक शाम को बिस्तर में पड़ते ही मुझे नींद आती है परम तृप्ति की, और प्रसन्नता के साथ उठता हूँ। ये शिक्षक कर्तव्य का सबसे बड़ा फायदा है। मैं सभी शिक्षकों को आमंत्रित करता हूँ। मुझे रोहित भाई ने बताया कभी 600 के आसपास शिक्षक रजिस्टर हुए, लेकिन मुझे लगता है कुछ इश्यू है, तो ये पूरा वेबिनार जो है अभी उसको कर देंगे यूट्यूब पर अपलोड। और मैं चाहूँगा कि इसको अपलोड करने से पहले विनोद भाई और रोहित भाई एक बार इसको पूरा देख ले, कुछ एडिटिंग की आवश्यकता है क्या, क्योंकि मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, मैं निसंकोच बोलता हूँ, निर्भयता से बोलता हूँ, क्योंकि सच्चा बोलता हूँ। पर कई बार क्या हुआ, विदाउट कंटेक्स्ट जब चीज़ें जाती है तो लोग गलतफहमी में आ जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो। तो एक बार इसको फिर से 1 घंटा सुन लिया जाए। और यहाँ जो भी मेरे वेबिनार लाइफ स्किल वाले भी हैं, अगर उनके पास समय है तो वो भी 1 घंटा सुन ले और मुझे सुझाव दे कि इसको काट दे, तो मुझे लगता है कि